Welcome everyone. This is again TW301 Basic Electronics, and in this session we will finish the discussion on the filters. In the previous sessions we introduced the filters and we define the filters and we also give the frequency response, which is very essential for the designing of the filters of the basic electrical elements R, L, and C. So this is the frequency response of the basic electrical component, passive components. And in the previous lecture, we also classify the filters as a analog, digital. Then again, we classify the analog filters as active and passive filters. Then we classify the different types of passive filters: low pass filter, high pass filter, band pass filter, and band reject filter. And now here we will try to understand how can we design the filters. Actually, we started it in the today's live session, but somehow it was not completed because of lack of time. So now we will continue our discussion on the filters, and here we will try to design the filters with the help of this characteristic. This is the frequency response of the resistor, inductor, and capacitor. And we will design the basic basic passive filters with the help of various combination of R, L, and C. So we will see how can we design the filters with the combination of R, L, and C. Okay, so let us start again with the same problem. The first circuit. So let us start with some basic circuits. First, we will take the R and C. This is my input, and I am taking output across the resistor. Sorry, capacitor. So, what is the important point is here? What is the important point here? That we should check from where we are taking the output. So, if we are taking the output across this capacitor in this circuit, then circuit will behave differently, and we will see subsequently that when we will take the output from this resistor, then the circuit will behave in different manner. So now let us start with the analysis of this circuit with the help of this diagram. So this is the resistor, the same kind of analysis which I have introduced in the live session. Again, we will do the analysis completely. So in order to find out what kind of filter is this, first we need to analyze this circuit on the extremities of the frequencies. So here we have applied this input, and this input is containing various frequencies, many for low from a very low from very low frequencies to very high frequencies. And now we will try to find out the frequency response of this circuit, how this circuit will behave when we will apply the low frequencies and when we will apply very high frequencies. And for the frequencies in between, we will interpolate, or you can say we will extrapolate the circuit. Okay, so extrapolate the response. So now RC, so this is the resistor, this is the capacitor, and we need to understand the response for the filter. We need to find out what kind of filter is this when the input is like this and output is like this. So if you want to make the systematic diagram, then this is just like this diagram. So this is a circuit where input is Vi, and we are taking output V naught. And inside this we have a resistor and capacitor. So this is the filter. So here we will try to find out the response. Okay. So let us start. So first we will try to draw the output over input. So as
we have already discussed in the previous lecture. We normalize this thing. So when we are providing output over input, as we know, this circuit is not an amplifier, and we have not introduced the amplifier yet. So this, as we know, if we are applying this input, then definitely this uh, ratio cannot be greater than 1, because we have already stated this, that our device is not an amplifier. This is just a filter circuit, normal circuit. We have take one R and one C. Okay, so and this is the frequency omega. Now we will try to find the response at the lower frequencies and at the higher frequency. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, basically we will try to find the response of this circuit. In order to recognize what kind of filter is this, first we need to find out the response. तो response को हम find करने की कोशिश करेंगे. तो response कैसे find करेंगे? सबसे पहले हम check करेंगे lower frequencies पे, कि अगर frequency हमारी बहुत low है, तब आपका सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा. तो देखिए, चेक करते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो, यानी इनपुट में बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, अगर इनपुट में बहुत लो, देखिए आर एक सुटेबली सेलेक्टेड वैल्यू है. वी विल सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर वेरी सुटेबली अकॉर्डिंग टू द फिल्टर. और आर जो है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है. हम यहाँ देख सकते हैं आर रजिस्टर इज अ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट डिवाइस, बट हियर यू कैन सी देयर इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिवाइस व्हिच इज सी. तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट इज वेरी लो, जब इनपुट की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, तो हमें पता है कि जो इम्पीडेंस है वो क्या होता है, 1/ओमेगा c. यानी कि when omega is tending to 0, almost it is very near to 0, in this region we are talking about this region. तो यहाँ के रीजन की हम बात कर रहे हैं जहां पे ओमेगा बिल्कुल छोटा है, और तब आपका जो रेस्पॉन्स होगा, तब इस फिल्टर का जो रेस्पॉन्स होगा किस तरीके से आएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं. जब ये ओमेगा बहुत छोटा है, तो ये ZC जो है आपका, ये क्या होगा, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. यू कैन सी with the help of mathematical equation we can conclude this thing, कि जब ओमेगा ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, 0 1 2, तो ये जितनी कम है उतना ही आपका इसकी वैल्यू ज्यादा होगी. यानी कि ये आपका अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, बिकॉज वी नो कि ये ऐसे करेगा. देखिए, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो सर डिनोमिनेटर में है, ये तो डिनोमिनेटर में है, अगर वैल्यू मान लीजिए 0.1 हर्ज है, 0 के आसपास 1 है, तो कैसे इसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, बिकॉज कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रो और पिको फैरेड्स में होती है. यू नो दैट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, तो जब माइक्रो और पिको फैरेड 10⁻12 ऊपर आ जाएगा. नैनो की अगर हम बात करेंगे तो 10⁻⁹, तो बहुत हाई वैल्यू, मतलब बहुत ये हाई वैल्यू नहीं होती है. तो आप देख सकते हैं माइक्रो और पिको फैरेड में और नैनो फैरेड में वैल्यूज होती हैं. तो यहाँ पे ये वैल्यू बहुत हाई आ जाएगी, ZC की वैल्यू. यानी कि फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटिव इम्पीडेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज वेरी हाई. यानी कि ये जो इम्पीडेंस होगा बहुत हाई होगा, किस पॉइंट, कब, जब फ्रीक्वेंसी बहुत लो आप अप्लाई करेंगे. ठीक है, और रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं समझने के लिए. बस पहली बार मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो. तो अब आप ये देखिए कि ये एक सर्किट है, इसमें लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी, ये बहुत हाई हो गया, बहुत हाई, और ये बहुत लो हो गया, स्मॉल. यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R इज मच मच ग्रेटर देन R. Or only for this model is only for the lower frequencies, because here first we are discussing the behavior of circuits on very low frequencies. ठीक है, एक बार एक सर्किट के लिए समझ लेंगे, बाकी आपको DHS में मैं क्वेश्चन दे देता हूं, तो जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा. तो एक सर्किट का मैं एग्जांपल लूंगा, RC RL और RLC का. उसके बाद फिर आपको बाकी और सर्किट्स के लिए खुद से फाइंड करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे R, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ वोल्टेज आया होगा. तो जो भी वोल्टेज उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा, तो अब अगर पोटेंशियल डिवाइडर थ्योरम लगाएं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी. अगर मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज है V सफिक्स कैपिटल R, तो ये क्या हो जाएगी, R ओवर R प्लस R
इंटू वी, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगी सारी की सारी। क्यों कि ऑलमोस्ट दिस आर इज नेग्लिजिबल, ये आर जो है नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो ये आर से आर कट जाएगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी कि जितनी भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी ऑलमोस्ट, थोड़ी सी मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिकॉज ऑफ दिस इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा, वो सारी की सारी वोल्टेज जो है आपको वी आर के अक्रॉस मिल गई, यानी इस रजिस्टर के इसके अक्रॉस मिल गई। और जब इसके अक्रॉस सारी की सारी वोल्टेज मिल गई, तब हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज पे इसकी वैल्यू जो नॉर्मलाइज वैल्यू है, मान लीजिए हाई वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये इसके आसपास आता है, हाई वैल्यू आ रही है, बहुत हाई वैल्यू आएगी। बिकॉज वी नॉट ओवर वी आई, वी नॉट बढ़ गया, वी नॉट क्या है, ये वोल्टेज अक्रॉस दिस, यहाँ तो हमने मॉडलिंग की है ना, बस ये दिस इज जस्ट द मॉडलिंग, तो ये मॉडलिंग की है हमने जस्ट कि समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, बस यही मेथड हमें समझना है। This is a qualitative method for recognizing the filters, and for the analysis of filter, this is a qualitative method. And in this method, we analyze the circuit on the extremities of the frequencies. On the both extremities, we analyze the circuit. Here on the very low frequencies, and now we will analyze the circuit on the very high frequencies. अब क्या होगा, अब जब वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, देन अगेन तब थोड़ी इसकी पिक्चर बदल जाएगी। यानी ओमेगा बहुत हाई, यानी ओमेगा को हम कह रहे हैं बहुत हाई हो गया, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अब जब ओमेगा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत हाई वैल्यू है, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी नहीं होता, हाई वैल्यू की बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर 6 7 8 9, ये इतनी लेवल की फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद, because this is a qualitative analysis, again I am reminding you, this is just a qualitative analysis to recognize the circuit as a filters. Quantitative analysis के लिए आप अलग subjects पढ़ते हैं, networks पढ़ते हैं, वहां पे आप quantitative analysis करते हैं। Here I will just tell you how to recognize any circuit, uh, whether that circuit is a low pass filter, high pass filter, or a band pass filter, or बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ओके, तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम सर्किट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, लेट अस कम बैक टू अवर डिस्कशन। तो ओमेगा जब इंफिनिटी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो जेड सी है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, ऑब्वियसली ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो जब ये जीरो की तरफ टेंड करेगा तो देखते हैं, अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो हमारा बहुत हाई था, अब ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है, व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस तो वही है जो पहले था, भाई इसका तो कोई चेंज हो नहीं रहा, ये तो पहले भी जो आर था। अब क्या होगा, जब बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी देंगे हम यहाँ पे, देखिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए अपने सर्किट पे यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए, अब बहुत हाई है तो आप ये मत कहिएगा कि सर पूरा यहाँ तक बनाइए, दीवार के पार ले जाइए, तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ से स्केलिंग हम करनी है तो हम अपने हिसाब से स्केलिंग कर सकते हैं अपने एक्सेस पे। तो ये हमारा एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पे इस हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की, यहाँ की, यहाँ पे हम इस हिस्से की बात कर रहे थे जहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, बिल्कुल जीरो के आसपास, तो उसका रेस्पॉन्स हाई 1, यानी ये जो नॉर्मलाइज वैल्यू 1 है, इनकी इसके इसके इक्वल है ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब ये जेड अब ये ऑलमोस्ट, अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस तो जीरो है, अब जो भी वोल्टेज आएगा यहाँ पे 10 वोल्ट 5 वोल्ट, वो सारा का सारा इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसके अक्रॉस जब हम वैल्यू निकालेंगे, ये तो ऑलमोस्ट जीरो ही आ रहा है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाएगा। और जब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो मतलब आपकी जो आउटपुट है यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट तो हम यहाँ से ले रहे हैं ना, सर्किट चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, हमारे एनालिसिस के लिए हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करी है इसकी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं और कौन सी डिवाइसेस हम इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर हमें एक सर्किट में एक ऐसा इनपुट लगाना है जो कि डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की इनपुट प्रोवाइड कर सके, तो वो सब सर्किट्स आप पढ़ेंगे आगे चल के DW401 में, ठीक है। तो वो सर्किट्स क्या होते हैं, कैसे हम उनसे एनालाइज करते हैं, तो वो अलग चीज है। अभी फिलहाल बस हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी, आपने ईसीएम में पढ़ा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, वो भी किसकी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया कि पहले फ्रीक्वेंसी हमारी ऑलमोस्ट जीरो थी, तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था कि सारा का सारा रजिस्टर, यानी कि ये आपका कैपेसिटिव इम्पीडेंस जो है आपका
कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई हो गया था XC। अब XC इतना ज्यादा हाई हो गया कि आपका कि सारा का सारा ड्रॉप जो है इस XC के अक्रॉस हो गया। जब आपकी बात कब की बात कर रहे हैं, जब आपने फ्रीक्वेंसी बहुत लो रखी और फिर आपने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे एनालाइज किया, और जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे एनालाइज किया तो इसका उल्टा हो गया बिल्कुल। यानी कि ये रेजिस्टेंस तो सेम रहा जो था अपना, है, ये हमने सिर्फ मॉडलिंग की है यहाँ पे, और बाकी ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत कम हो गया, तो सारा का सारा ड्रॉप यहाँ आ गया, जितना भी ड्रॉप था इनपुट का। अब यहाँ पे ड्रॉप नहीं आया, यहाँ पे यानी आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो। तो यानी अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो होगी नीचे, यानी कि ये वैल्यू जो बिल्कुल आउटपुट जो वैल्यू बहुत कम होगी इनपुट से, तो ऑब्वियस सी बात है V नॉट ओवर VI रेशियो जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ जो बीच का पोर्शन है इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इस तरीके से देखते हैं कि ये आपका प्रैक्टिकल फिल्टर होता है। तो ये कौन सा फिल्टर बना, तो दिस इज ए लो पास फिल्टर, यानी ये लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को एटेन्यूएट करेगा। यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उन पे तो इसकी आउटपुट अच्छी आ रही है, ठीक है, गेन या आउटपुट में, क्योंकि सर्किट हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, यहाँ इनपुट दे रहे हैं यहाँ आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी है उनको ये एटेन्यूएट करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज एनी सर्किट. So whether that circuit is a low pass filter or that circuit is a high pass filter, band pass or band reject filter. So this is the basic method, and again I am repeating, last time I am repeating that we are providing the different frequencies with the help of this source, and when we are providing very low frequency here which is almost equal to 0, then my impedance is very high, then my capacitive reactance is very high, and this impedance is very high, so the all drop will be on this VR, which is almost equal to V, because this R is much greater than R, then we can neglect this R. So this is almost equal to input, VR equal to this input which is applied here, VI. Okay, and so here for the low frequency case the output is very high, and for the high frequency case the omega is tending to infinity, omega is very high, then this ZC will be tending to 0. Then if this ZC is tending to 0 and this resistance is same, what will happen, most of the drop will be on this resistance value, and there will be a very less drop on this R. So all the output will be on this resistance, all the drop will be on this resistance. So this is the basic mechanism of filter. Okay, so here you can understand how the a filter is working and how we can recognize a filter just by finding the response of the circuit on both the extremities, यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और बहुत लो फ्रीक्वेंसी. So this is the example of RC लो पास फिल्टर. अब आरसी से ही आप हाई पास फिल्टर बना सकते हैं. कैसे? ये आपको मैं इसका इसका एनालिसिस ये मैं आपको डीएचए में देता हूँ. आज वैसे मैंने दिन में करा दिया है, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी आप इसका मैं आरसी का आपको वो भी बता देता हूँ. हाई पास फिल्टर तो ये डीएचए में है, और डीएचए आपको अभी आपके क्लासरूम पे मिल जाएगा, ठीक है. तो आरसी का हाई पास फिल्टर कैसे बनेगा? अगर हम आरसी लें, अब हम क्या करें, बस कैपेसिटर और रजिस्टर के रोल को इंटरचेंज कर दें, यानी सर्किट वही है, बस हमने आउटपुट जो है यहां से ले लिया, रजिस्टर के अक्रॉस मैंने आउटपुट ले लिया और कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट नहीं ली, ठीक है. नाउ दिस विल एक्ट एज ए हाई पास फिल्टर. तो कैसे ये एक्ट करेगा और इसका एनालिसिस कैसे करना है ये आपने खुद से करना है, ठीक है. तो ये एक सर्किट मैंने डिस्कस कर लिया. नाउ आई विल डिस्कस द RL सर्किट, फिल्टर में RL सर्किट. चलिए ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, यहाँ ये इंडक्टर लगा दिया. अब ये दूसरे तरीके का सर्किट हो गया. अब इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं.
तो हमने एक आर लिया, एक एल लिया है, फिर से वही पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि पहले कैसे कर रहे हैं, और नाउ वी विल प्रोसीड क्विकली।